Alright, G. So we were discussing this question, and ultimately, when you will be solving this whole of a relation, your answer for x will be appearing as what? Nearly 1260 something. So it is appearing as 1270. The student, is this understandable? Everyone is with me? Yes, sir. Okay. So moving onwards, let's see the next question. Okay, this question is pretty interesting. So see how to solve this question. 13. Question says a rod is pivoted at one end. So let's say this is a rod, this is a rod, and it is being pivoted at, let's say, this point P. Question says initially the angle theta of the rod with the horizontal is zero. So let's say it is present horizontally like this. Question says the weight of the rod causes the moments M. It means there is some weight which is acting at its this position, and it is creating what? It is creating some moments. Question says the rod is then rotated in the vertical plane so that angle theta increases from 0 degree to 180 degree. So it means कि rod को अब हम क्या कर रहे हैं? Rod को इस horizontal position से हम rotate करवा रहे हैं certain angle के ऊपर. Let's say at an angle of theta. Let's say at an angle of theta. So question says कौन सा ऐसा graph है which is going to relate with the moments and theta. So you know, if your rod, which was initially horizontal, now if it moves to some any angle of theta, तो उसका weight हमें पता है कैसे act करेगा. Weight will always be acting. Let's say मैं अलग से diagram बनाता हूँ. तो अगर ये rod एक angle के ऊपर चला गया theta पे, तो उसका weight हमेशा कैसे act करेगा? Vertically downward. बट मोमेंट्स निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होती है? हमें एक ऐसी फोर्स चाहिए जिसका डिस्टेंस के साथ कैसा एंगल होना चाहिए? 90 डिग्री. दिस वाज द पिवट, सो लेट्स से दिस इज द डिस्टेंस, सो वी नीड दिस फोर्स. तो हम ये फोर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे? वी आर गोइंग टू फाइंड आउट यूजिंग द रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स. सो इफ दिस वर्टिकल फोर्स इज वेट, what will be this vertical force known as? It will be W cos of theta. It will be what? W cos of theta. So in fact, your moments will be equals to what? W cos of theta into D. Okay, D is the distance from the center till the pivot, right? So D is varying with which trigonometric quantity? Cos of theta. And we know cos of theta. When theta will be zero, your moments is going to be maximum because cos zero is 1. तो हमारे पास कौन सा ग्राफ ऐसा बता रहा है? कॉस का हमेशा ग्राफ कर्व बनता है और जीरो के ऊपर वो मैक्सिमम है, और कॉस 90 के ऊपर कितना हो जाता है? जीरो हो जाता है. और कॉस 180 के ऊपर कितना हो जाता है? मोमेंट्स की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, इट विल बिकम नेगेटिव. सो एज पर द रिलेशन ऑफ दिस कॉस, द करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी डी. Is this understandable? Yes, sir. Moving to the next question. This question is question number 14. Again, it is related to the forces. So how many forces do you witness? This is W force, this is tension force, this is force by hinge. The question says list the three forces in the increasing order of magnitude. So this is a trap door which is placed horizontal by these number of forces. One is by the tension in the cable, other is the weight, and let's say there is one hinge force. So you know, if it is stated horizontal, if it is at rest, so it means that sum of clockwise moments is equal to sum of anti-clockwise moments. And we also know the moment caused due to one of the force. Moment का formula हमारे पास क्या होता है? Moment will be is equals to force into distance. So to maintain same amount of moment,
अगर फोर्स हमारे पास, अगर डिस्टेंस हमारे पास ज्यादा है तो फोर्स कितनी चाहिए? लेस। तो अगर यहाँ देखो, यहां से यहां तक वेट के मोमेंट के लिए डिस्टेंस ज्यादा है एज कंपेयर टू द मोमेंट ड्यू टू दिस, तो इसका डिस्टेंस ज्यादा है तो वेट विल गोइंग टू बी लेस। इसका डिस्टेंस कम है तो टेंशन विल बी मोर। ठीक है, तो इस चीज को देखते हुए हमारे पास कौन सी ऑप्शन बेटर बनती है? वेट विल बी स्मॉलर and tension force will be the largest. So H is somewhere going to be intermediate. And इसके अलावा और कोई भी ऐसी ऑप्शन सजेस्टिव नहीं है। तो करेक्ट आंसर इन दिस रिगार्ड इज गोइंग टू बी सी। सो जो सबसे स्मॉलेस्ट फोर्स है वो वेट होगी, उससे ज्यादा फोर्स जो है वो ये हिंज लगा रही है, और सबसे ज्यादा फोर्स होगी टेंशन। तो टेंशन टी विल बी द हाईएस्ट फोर्स, बिकॉज इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो क्या है? कम है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज less. So when its perpendicular distance is less, so it means it will be having more force. बेटा इसको समझने के लिए ये जरूरी है कि जब भी आपने किसी बॉडी को अटेन करवाना है, दिस इज द पिवट पॉइंट। तो अगर मैं आपको यूं समझाता हूँ कि मैं एक पॉइंट के ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ यहाँ पे, और उसका डिस्टेंस क्या है? ये। तो इसकी वजह से जो मोमेंट्स आएगा वो क्या आएगा? द मोमेंट्स ड्यू टू दिस विल बी इक्वल्स टू व्हाट? फोर्स इनटू डिस्टेंस। ठीक है। अगर मैं कहता हूं कि मैं डिस्टेंस कम कर दूं, डिस्टेंस को क्या कर दूं? कम कर दूं। डिस्टेंस में लेट से यहां पर लेता हूं फोर्स, यानी कि यहां पे लगा रहा हूं। तो आप मुझे बताओ, यही मोमेंट अटेन करने के लिए ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी या कम फोर्स लगानी पड़ेगी? तो आई वुड बी नीडिंग मोर फोर्स। सो याद रखें, सेम मोमेंट्स के लिए मोर फोर्स होगा तो लेस डिस्टेंस पे वो फोर्स लगनी चाहिए, और अगर लेस फोर्स लग रही है तो एक ही अमाउंट का मोमेंट क्रिएट करने के लिए आई नीड मोर डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट। तो हमारे पास जो मोमेंट्स है वो कौन क्रिएट कर रही है? सिर्फ दो फोर्सेस कर रही हैं, डब्ल्यू और टी। सो ये हिंज वाली फोर्स कोई मोमेंट्स क्रिएट नहीं करेगी। सो इसका मतलब इनमें से कोई एक फोर्स सबसे ज्यादा होगी, एक फोर्स सबसे कम होगी। सो जो ज्यादा डिस्टेंस पे लग रही है दैट फोर्स विल बी लेस, एंड जो फोर्स कम डिस्टेंस पे लग रही है दैट विल बी मोर। So weight will be less and extremist force will be tension T. Is this understandable now? बेशक हम एज का वर्टिकल कंपोनेंट बेटा ले लें, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है जब भी कोई फोर्स पिवट के ऊपर लगेगी, किसी भी डायरेक्शन में पिवट पे लग रही होती है, वो फोर्स कभी भी मोमेंट्स क्रिएट नहीं करती, कोई भी फोर्स मोमेंट्स क्रिएट नहीं करेगी। नेक्स्ट इट्स कम about the definition of a force. So how to define force? Force is defined as rate of change of momentum. How much momentum changes in how much time? That is known as force. फिर हमारे पास आ जाता है एक बोट है जो कि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है और उसके ऊपर एक कांस्टेंट ड्रैग फोर्स लग रहा है। क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द पावर यूज्ड बाय द बोट टू मूव थ्रू द वाटर। तो हमने ये फॉर्मूला पावर का पढ़ा हुआ है, पावर इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। सो दैट फॉर्मूला विल बी P इज इक्वल टू एफ इन टू वी। हमने वर्क पावर एनर्जी के केस में ये फॉर्मूला पढ़ा था। So power is force times velocity. Next question 17. The diagram shows four forces acting on a circular disk. Each force has magnitude F. Two of the forces act vertically and other two forces act horizontally. All four forces act in the same plane as the disk. No other forces act on the disk. The disk has a diameter D. इसका diameter कितना है? D है। इसका भी diameter यहां से यहां तक भी जो diameter है वो है D. विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? ओके, सबसे पहले ये जो दो फोर्सेस हैं एक जैसी जो ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही है और एक डिस्टेंस पे लग रही है, इन फोर्सेस को मैं क्या नाम दूंगा? दीज टू फोर्सेस आर कॉल्ड एज कपल फोर्सेस। और जो ये फोर्स लग रही है एफ वाली और ये वाली एफ वाली,
इसको मैं क्या नाम दूंगा? ये आपस में कपल फोर्स क्रिएट कर रही हैं। और मोमेंट्स कौन सी फोर्सेस की वजह से होता है? सॉरी, टॉर्क कौन सी फोर्स की वजह से होता है? कपल की वजह से होता है। तो अगर इसका मैं टॉर्क निकालूं वो क्या बनेगा? वन ऑफ द फोर्स। इसका मैं टॉर्क निकालूं वो क्या बनेगा? वन ऑफ द फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फोर्सेस। और इसका मैं टॉर्क निकालूं तो वो क्या बनेगा? वन ऑफ द फोर्स इंटू डी। और इस कपल फोर्स की वजह से भी क्लॉकवाइज बन रहा है, इसकी वजह से भी क्लॉकवाइज रोटेशन बन रही है, तो ये सारी क्लॉकवाइज पूरा गोल गोल घूम रही है। तो हमारे पास रिजल्टेंट टॉर्क जीरो नहीं हो रहा। जब तक रिजल्टेंट मोमेंट्स या रिजल्टेंट टॉर्क जीरो नहीं होता, ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में नहीं होता। इक्विलिब्रियम में, नॉट इन इक्विलिब्रियम। इट इज नॉट इन इक्विलिब्रियम। So if it is not in equilibrium, what will be correct option with this regard? The disk is not in equilibrium because the resultant torque is twice of Fd. तो डिस्क इज इन इक्विलिब्रियम? नहीं, इक्विलिब्रियम में नहीं है। डिस्क इज नॉट इन इक्विलिब्रियम क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स 4F है। नो, डिस्क इक्विलिब्रियम में है ही नहीं, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकती। इज दिस फाइन? Yes, sir. Okay, moving to the next concept. Next it says 18. 18 question says, जी एक कपल फोर्स का फॉर्मूला होता है वन ऑफ द फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फोर्सेस। हमजा, ठीक है, एक फोर्स को डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फोर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज द मोमेंट्स, सॉरी, दैट इज द टॉर्क ऑफ दैट रिस्पेक्टिव कपल फोर्स। Okay, this 18 question is pretty very important, so let's see this question, what it is saying. तो क्वेश्चन 18 हमें क्या बता रहा है? क्वेश्चन 18 हमें बता रहा है a ball is projected into the air from the horizontal ground and follows the path shown in the diagram. वो कहता है at point Q R S T the ball has kinetic energies as EQ, ER, ES and ET respectively. The heights above the ground of these 4 points are shown. Air resistance is negligible. Air resistance नहीं है. तो which difference in kinetic energy is smallest? तो याद रखिएगा, when it is moving upward, तो कौन सी एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो रही है किस में? काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टिंग इनटू पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी होली सोली किस पे डिपेंड करती है? mgh के ऊपर। ठीक है, यानी कि इट इज डिपेंडिंग अपॉन दी हाइट। तो हमसे वो पूछ रहा है एनर्जी का डिफरेंस कहाँ स्मॉलेस्ट होगा। तो हम ऑप्शंस देखते हैं, वो कह रहा है ई क्यू की एनर्जी को माइनस करो ई एस से। तो यहाँ पर जो एनर्जी है दैट इज ड्यू टू द पोटेंशियल एनर्जी, तो उसको अगर हम माइनस करें तो वो 1.5 हाइट पे है, तो इनकी सिंपल हाइट्स को आपने सब्ट्रैक्ट करना है। तो इन दोनों को अगर माइनस करेंगे 1.5 माइनस 1.6, तो दिस विल गिव मी व्हाट वैल्यू? 0.1। और ई एस और ई आर को अगर माइनस करूं, ई एस माइनस ई आर, तो ये कितना बन जाएगा? 1.8 माइनस 1.6, तो ये हो जाएगा 0.2। इसी तरह ई टी और ई क्यू को अगर मैं माइनस करूं तो वो कितना बन जाएगा? 1.5 माइनस 1.3, दिस विल बी 0.2। एंड इफ आई माइनस ई टी विद ई आर, this will becomes what? 1.8 minus 1.3 and it will be equals to 0.5. तो सबसे कम डिफरेंस एनर्जीज में किस में आ रहा है? ए में। So our correct answer will be A. Okay, moving onwards. Next question, question number 19 is related to efficiency. हमारे पास efficiency का क्या फॉर्मूला होता है? Efficiency is equals to, efficiency is equals to useful energy output whole divided by useful energy useful energy output divided by total energy input multiply by 100%। ठीक है, परसेंटेज में रखना है तो ठीक है, नहीं रखना तो कोई ऐसी बात नहीं।
अभी वो कह रहा है कि द बैटरी है एक टैबलेट कंप्यूटर की जो कि अनचार्ज थी, so it is connected to a constant 10 watt power supply for 2 hours. So it means हमारे पास इनपुट एनर्जी क्या आ जाएगी, एनर्जी का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ पावर क्या होता है, पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम. So my input energy given by power supply will be how much? It will be 10 watts whole of multiplied with 2 hours. So 2 hours need to be converted into seconds. So this will become 2 into 3600. So how much is going to be the input power? 2 into 3600 will be 72. This will be 72,000 joules. So input energy will be equals to 72,000 joules. Okay. एफिशिएंसी मेरे पास कितनी है, एफिशिएंसी है मेरे पास 80%. तो इसको अगर मैं वैल्यू में निकालूं दिस विल बी 0.8. और मुझे क्या चीज निकालनी है, आई जस्ट वांट टू हैव टोटल एनर्जी आउटपुट, यानी कि बैटरी में कितनी एनर्जी स्टोर हुई. तो फॉर्मूला आपके सामने है, एफिशिएंसी की वैल्यू आप 80% की जगह 0.8 लिख दें. जब हम वैल्यू को परसेंटेज में नहीं लिखते तो 100% लिखने का कोई जरूरत नहीं है. तो ई नॉट फाइंड करना है, व्हाट इज E1, दैट इज 72,000 joules. So this 72,000 will be multiplied with E naught, and this will becomes what, 0.8 into 72,000. So this will be equivalent to, probably equivalent to, मेरे ख्याल से कुछ ये आंसर शायद बनता है. काइंडली चेक, इज दिस द आंसर? So when you're going to multiply it, you will be having an answer of 5.8 into 10 raised to power 4 joules. Yes, people tell me, is this understandable? Yes, sir. Okay. Moving onwards to the next part. Okay, this part is very critical. So let's see what is happening here. So this question says that an initially stationary firework explodes. So let's say ये एक fireworks है, कोई भी पटाखा है या कोई भी बॉम्ब है या कुछ भी है, ये एक्सप्लोड होता है. जैसे ही एक्सप्लोड होता है तो वो कहते हैं इसके टू फ्रेगमेंट्स हैं, दे आर गोइंग टू मूव, एंड बोथ द फ्रेगमेंट्स विल बी मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. ये कह रहा है फ्रेगमेंट्स हॉरिजॉन्टली मूव कर रहे हैं, एक लेफ्ट साइड पे मूव कर रहा है, एक राइट साइड पे मूव कर रहा है. वो कहता है पहले फ्रेगमेंट, एक फ्रेगमेंट का मास है m, दूसरे का मास है 2m. और मैं कहता हूं कि जब लेट से एक्सप्लोजन होने के बाद इस m वाले की वेलोसिटी में कहता हूं इट इज v1, और सेकंड वाले की मैं वेलोसिटी कह देता हूं इट इज v2. सो ऑलवेज रिमेंबर, जब भी एक्सप्लोजन होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमेशा फॉलो होता है. इन एक्सप्लोजन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम फॉलोज. ठीक है, हमेशा याद रखिएगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम फॉलो होता है व्हेनेवर द एक्सप्लोजन इज गोइंग टू टेक. तो जब धमाका होना था उससे पहले टोटल मोमेंटम आपका क्या हो गया, योर टोटल मोमेंटम वाज जीरो. एंड आफ्टर कोलिजन आपके पास टोटल मोमेंटम क्या होगा, मोमेंटम ऑफ बॉल वन, फ्रेगमेंट वन, प्लस द मोमेंटम ऑफ फ्रेगमेंट टू. इज दिस अंडरस्टैंडेबल? तो हम यहां से एक इक्वेशन पहले बना लेंगे, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, बिफोर एक्सप्लोजन विल बी इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर एक्सप्लोजन. सो कैन वी से दिस टोटल मोमेंटम बिफोर एक्सप्लोजन वाज जीरो, व्हाट वाज द टोटल मोमेंटम आफ्टर एक्सप्लोजन? ये लेफ्ट पे मूव कर रहा है तो मैं इसको बोल देता हूँ -of mv1, और ये राइट पे मूव कर रहा है तो इसको मैं बोल देता हूँ +2mv2. और यहां से मेरे पास एक इक्वेशन बन जाएगी, वो क्या होगी, -mv1 moves to the left, it becomes mv1 is equals to 2mv2. like m और m आपस में कैंसिल हो जाएंगे, both the m cancels out. So from here I can say, here I can say that v2 is equals to v1 over 2. यहाँ का 2 मल्टीप्लाई और था लेफ्ट साइड पे डिवाइड होगा.
ये एक इक्वेशन बन गई मेरे पास। अब वो हमें एक और बात भी कह रहा है कि जो टोटल काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर होगी बाय द एक्सप्लोजन इज ई। तो यानी कि एक्सप्लोजन के बाद जो इनकी टोटल काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी है, ई। तो लेट्स से मैं कहता हूं कि राइट साइड पे टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं, वो कितनी हो जाएगी? टोटल काइनेटिक एनर्जी इज ई। इट मींस इट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट फ्रैगमेंट, हाफ एम वी वन का स्क्वायर, प्लस इट इज द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेकंड फ्रैगमेंट, हाफ मास कितना है, 2m इंटू वी टू का स्क्वायर। ठीक है। अब इसको थोड़ा सा मैं रेक्टिफाई कर लेता हूँ। मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है? वो कहता है व्हाट इज द स्पीड ऑफ द फ्रैगमेंट जिसका मास है m1। तो मैंने किस वाले को मास m कहा था, उसकी स्पीड कितनी है, v1। तो मतलब मेरी इक्वेशन के मुताबिक मुझे किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? आई हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ v1। सो हाउ विल दिस बी डन? E इज इक्वल्स टू, इसको मैं रेक्टिफाई करता हूं। मुझे v1 चाहिए तो मैं v2 की पहली इक्वेशन मेरे पास आ चुकी है, ये ऊपर वाली। मैं v2 की जगह वो वैल्यू प्लग इन करूंगा, ये क्या बन जाएगा, m स्क्वायर ओवर 2, प्लस ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, पीछे क्या बचा, m v2 स्क्वायर। नेक्स्ट में से क्या लिखूंगा, m v1 square over 2 plus this will becomes what, m, what will be the value of v2 I am going to have? v2 मुझे इस इक्वेशन से वैल्यू मिलेगी। so this will be this will be v1 square over 4। तो एलसीएम में अगर ले लूं दोनों टर्म्स का, ये e के इक्वल है। सो e will be equals to LCM will be 4, ऊपर आ जाएगा 2m v1 square plus m times v1 square, and my e value will be equals to what? It will be equals to 3m v1 square whole divided by 4। और अगर मुझे v1 की वैल्यू फाइंड करनी है, v1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, v1 इज इक्वल्स टू 4 को लेफ्ट में मल्टीप्लाई किया 4e ओवर 3m, और अंडर रूट ले लूंगा मैं। तो दिस इज गोइंग टू बी द वैल्यू ऑफ स्पीड, and as per this the correct answer is D। so it's a sort of a concept जो कि हर collision में इस्तेमाल होता है। this concept is going to be used in every sort of collision। ठीक है। तो हर collision में ये इस्तेमाल होता है। तो इसको आपने याद रखना है। याद कहाँ से बात शुरू होनी है, जब भी एक्सप्लोजन होगा, whenever anything is exploding, always remember law of conservation of momentum will be followed। So it means, let's say we were having one explosive material, it exploded. Initially, it was at rest, it is stationary. So its momentum will be zero. As it explodes, so one of the fragment moves to the left and other move to the right. Why? Because it is stating they move in the opposite direction, horizontally. So one of the fragment is having mass m, the other is having a fragment of 2m। मैंने खुद से कह दिया, let's say after explosion m is having velocity v1, the m2 second fragment is having a velocity of v2। So as per law of conservation of momentum, momentum before explosion is equals to momentum after explosion। So before explosion momentum was totally zero, the momentum of this will becomes what, negative mv1, momentum of this becomes 2m times of v2। and if I move this mv1 to the left, so this will becomes mv1 equals to mv2. Mass and mass cancels. I am going to get an equation as v2 is equals to half of its velocity। It means the second fragment will having a velocity half of the first one। ये इसका मतलब है। The velocity after explosion of the second fragment will be half of the velocity of first one। इसके बाद उससे मुझे एक और बात बताई कि जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है फ्रेगमेंट की एक्सप्लोजन के बाद, दैट इज ई। सो हाउ आई कैन फाइंड आउट द काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी? मैं टोटल काइनेटिक एनर्जी फ्रेगमेंट वन की फाइंड करूंगा प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्रेगमेंट टू। सो दिस विल बी इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। इनके मैसेज डाले, मेरे पास एक एनर्जी का रिलेशन आ गया
एम वी वन स्क्वायर ओवर टू प्लस एम वी टू स्क्वायर। नेक्स्ट मुझे पता है वी टू कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ वी वन, क्योंकि मुझे निकालना क्या है, आई नीड टू फाइंड आउट वी वन, वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट फ्रैगमेंट, इन टर्म्स ऑफ ई। सो इन टर्म्स ऑफ ई मैंने फाइंड करनी है, इसका एलसीएम ले लूंगा, और एलसीएम लेने के बाद मेरे पास ये वी वन का एक्सप्रेशन आ जाएगा। सो वी वन इज इक्वल टू अंडर रूट फोर ई ओवर थ्री एम। इज दिस फाइन? Yes, sir. क्योंकि बेटा इससे मुझे एक काइनेटिक एनर्जी, इस वजह से मैं कह रहा हूँ क्योंकि इससे मुझे टोटल काइनेटिक एनर्जी का बोला है, जब एक्सप्लोजन हुआ वो ट्रांसफर हुआ है फ्रैगमेंट्स को। तो फ्रैगमेंट्स की टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी है? ई। और टोटल काइनेटिक एनर्जी कैसे फाइंड करते हैं? हर एक कंपोनेंट की काइनेटिक एनर्जी को सम करके। नेक्स्ट, दिस एमसीक्यू इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। सो this question says a spring is fixed at one end extended by applying force F to other end and the spring has extension X, elastic potential energy EP, spring constant is K. So वो कहता है कि spring obeys Hooke's law. Which relationship is correct for the spring? Is EP is directly proportional to F? Is EP directly proportional to X? Is EP directly proportional to K? Is EP directly proportional to X square? So हमारे पास फॉर्मूला क्या आ जाता है? Elastic potential energy is equals to half into kx square। तो अगर मेरे पास k कांस्टेंट और हाफ कांस्टेंट है, तो मैं क्या लिख सकता हूं? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। तो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस रिगार्ड? डी। ठीक है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। इज दिस अंडरस्टैंडेबल? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो हमेशा है वो प्रोपोर्शनल होती है एक्सटेंशन के स्क्वायर के इक्वल। Next question says a force extension graph is produced for a metal wire. What must describe the limit of proportionality of a wire? Is it the point after which the wire breaks? No. It is the point beyond which Hooke's law is not obeyed? Yes. Is it the point beyond which the wire cannot return to its original length? वो elastic limit होती है, तो ये भी limit of proportionality को नहीं बताता। Is it the point beyond which the wire starts to deform plastically? No, वो elastic limit के बाद होता है, तो ये भी cross होगा। So what is the correct answer in this regard? The point beyond which Hooke's law is not obeyed. कभी भी Hooke's law obey नहीं होता limit of proportionality के बाद। जी बच्चों, ये बात कंफर्म है, पता है सबको? Yes. Sir, ओके for जी। the previous MCQs, why isn't EP directly proportional to K as well? बेटा के कांस्टेंट है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है अगर एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ेगी ना। तो के जब बढ़ ही नहीं रही, तो हाउ वी कैन से दैट ईपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के? नो, ईपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। के विल बी कांस्टेंट, ये पूरी टर्म कांस्टेंट है। इज इट फाइन? Yes, sir. आगे चलता हूँ। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन प्रिटी इंटरेस्टिंग। क्वेश्चन कहता है स्प्रिंग हैज अ स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ 6 न्यूटन पर सेंटीमीटर। इट इज जॉइंड another spring of spring constant 4 and the load is 80 न्यूटन। क्वेश्चन सेज व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ द composite spring। तो हमने एक्सटेंशन फाइंड करनी है, एक्स फाइंड करना है। हमारे पास फॉर्मूला क्या है इसको करने का? फॉर्मूला है हमारे पास एफ इज इक्वल्स टू के एक्स। बट मैं एक चीज विटनेस कर रहा हूं कि ये स्प्रिंग और ये स्प्रिंग कैसे कनेक्टेड है? दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो मेरी टोटल स्प्रिंग कांस्टेंट किस तरह आ जाएगी? उसका फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है के वन इंटू के टू ओवर के वन प्लस ऑफ के टू। तो ये कितना हो जाएगा? सिक्स इंटू फोर होल डिवाइड बाय सिक्स प्लस फोर। तो टोटल स्प्रिंग कांस्टेंट कितना आ जाएगा? 6 into 4 is 24 divided by 10. This will be equals to 2.4 Newton per centimeter. This will be the total spring constant. और total force मेरे पास 80 है, तो extension कितनी हो जाएगी? X is equals to F over K. So force is 80, total spring constant is 2.4. So people, can anyone divide 80 by 2.4? आंसर आएगा
I think it will be 33 something. Twenty three point three. हाँ जी, तो इसका आंसर आ जाएगा 33 सेंटीमीटर। ठीक है। अच्छा, अब ये क्वेश्चन नंबर 24 फॉर द टाइम बिंग हम नहीं कर रही है। वेव्स का पार्ट शुरू हो गया। 24 भी वेव्स है, 25 भी वेव्स है, 26 7 ये वेव्स के पार्ट हैं। 28 29 30 30 तक, 31 तक सारे वेव्स के पार्ट हैं। तो आप सबसे मैं कहूंगा प्लीज जंप अप टू क्वेश्चन नंबर 32। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, क्वेश्चन ये कह रहा है व्हाट आर द डेफिनेशंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ इन टर्म्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफर एंड चार्ज। तो हमें पता है पोटेंशियल डिफरेंस का भी फॉर्मूला क्या होता है। इट इज एनर्जी ट्रांसफर पर यूनिट चार्ज। और हमें पता है ईएमएफ का भी क्या फॉर्मूला होता है, एनर्जी ट्रांसफर पर यूनिट चार्ज। तो दोनों के केस में करेक्ट आंसर इज ए। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 क्या कह रहा है, ये डायग्राम आपको कह रहा है कि रिजल्टेंट आपने वो निकालना है। तो इसका पहले टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेंगे आप आर टी करके। इसको RT1 कह देते हैं, और जो भी आंसर आएगा इसको आप एड अप कर दोगे इस R1 रेजिस्टर में। तो टोटल रेजिस्टेंस आपके पास आ जाएगी R1 प्लस ऑफ RT1। तो वट एवर विल बी योर आंसर दैट इज गोइंग टू बी स्टेटेड हेयर। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो मेरे ख्याल से आंसर आपका बनेगा 3.2 किलो ओम। ये खुद कैलकुलेशन कर लीजिएगा, टाइम इसमें काफी लग जाएगा। मैं आगे चलता हूँ। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 34। इसमें वो कह रहा है कि आपने रेजिस्टेंस फाइंड करनी है और आपको पावर दी हुई है और वोल्टेज दी हुई है। तो आप फॉर्मूला यूज करेंगे P इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर। और आपने रेजिस्टेंस फाइंड करनी है तो दिस विल बी R इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर ओवर पी। So when you are going to do v square over p, so your answer for this is going to appear as what? Yes, can anyone tell me what will be its answer? It will be appearing somewhat, I believe, as 0.64 ohm. B is going to be its answer. ठीक है, simple सी calculation है. You can also do it on your own as well. So see this question, another important question. So you can put a asterisk on it as well. The diagram shows a cell with internal resistance connected in parallel with a fixed resistor. Question says the resistance of the variable resistance is decrease. इस वेरिएबल रेजिस्टेंस की रेजिस्टेंस कम हो गई है। वो कहता है व्हाट हैपेंस टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वेरिएबल रेजिस्टर एंड द करंट इन द वेरिएबल रेजिस्टर। जी, जब ये वाली रेजिस्टेंस कम हो जाएगी तो ऑल टुगेदर ये जो पैरेलल कॉम्बिनेशन जुड़ा हुआ है इसकी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, इसकी रेजिस्टेंस डिक्रीज कर जाएगी। इसकी रेजिस्टेंस क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। और जब रेजिस्टेंस डिक्रीज कर जाती है तो आप बताइए इस पूरे सेगमेंट के ऊपर जो वोल्टेज है या पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, सो वोल्टेज इज गोइंग टू गेट डिक्रीज। और जब यहाँ की खास तौर पे रेजिस्टेंस कम होगी तो करंट क्या हो जाएगा, इस सेगमेंट के अंदर जो करंट है इट विल इंक्रीज, इट विल इंक्रीज। सो व्हाट इज गोइंग टू बी द करेक्ट ऑप्शन, voltage decreases and current increases. Is this fine? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख रहे हैं 36। वो कहता है एक रेडियो एक्टिव सोर्स है जो अल्फा पार्टिकल्स निकाल रही है। एवरेज करंट जो कॉज हुआ है वो कितना हुआ है, करंट इज 1.6। दिस इज द वैल्यू ऑफ आई करंट। वो कहता है व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स हिटिंग द मेटल टारगेट इन टाइम ऑफ दिस। तो हमारे पास सबसे पहले चार्ज निकालोगे, चार्ज की टोटल वैल्यू क्या आती है, चार्ज इज इक्वल टू करंट मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो ये कितना हो जाएगा, करंट कितना है 1.5 इंटू 10 पावर माइनस ऑफ 9। कितने टाइम में ये होगा, दिस विल हैपन इन अ टाइम ऑफ 3 सेकेंड्स। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे दिस विल बी इक्वल टू 4.5 इंटू 10 पावर माइनस 9 कूलम्स। दिस विल बी दी अमाउंट ऑफ चार्ज। अगर ये अमाउंट ऑफ चार्ज मेरे पास आ गया तो मुझे बताओ एक अल्फा पार्टिकल पे कितना चार्ज होता है, व्हाट इज द चार्ज
ऑन अल्फा पार्टिकल इज, अल्फा पार्टिकल दो प्रोटॉन से मिलके बना हुआ है, तो दो प्रोटॉन का चार्ज कितना होगा, 2 × 1.6 × 10⁻⁻19। सो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें, दिस विल बी व्हाट, 3.2 × 10⁻⁻19। सो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, ये आ जाएगा टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय चार्ज ऑफ अल्फा। तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल्स टू 4.5 × 10⁻⁻9 whole divided by 3.2 × 10⁻⁻19. So this will be probable answer as, I guess so, 1.4 × 10⁻10। ठीक है, इसका आंसर जब इसको सॉल्व करेंगे वो कितना आ जाएगा, 1.4 × 10⁻10। समझ आ गई? तो यहाँ पे हम अपनी क्लास को ख़त्म करेंगे, सेशन ख़त्म होने वाला है। तो ये रिमेनिंग 3 MCQs जो रह गए ये सिंपल से हैं, इसको आप ट्राई कीजिएगा अपने एंड पे, तो ना हुए तो आप फर्दर मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है जी।